Hello students, welcome to Ashwamekh Vidyalaya. Myself Surekha Patel and today we are going to discuss exercise of chapter 2. First question answer है answer the following question जिसमें how is the climate near the sea coast of India? Regions near the sea coast of India experience less heat and cold. There is not much difference between the weather of summer and winter in this region. Thus, on the sea coast of India, there is a humid and moderate climate. Okay. Next one, how do the 3 seasons affect your daily routine? जैसे हम लोग ने आगे बात किया था कि जैसे सीजन चेंज होती है तो उसकी इफेक्ट जो है ह्यूमन बींग्स के लाइफ स्टाइल में भी होती है. तो इन विंटर आई वेयर अ वुलन क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड. I like to wear colorful dress in this season. I eat variety of milk, ghee, dry fruits like almond, cashew, nuts, grape, fig, etc. Fruits में अगर देखेंगे तो I enjoy to eat guava. I sleep after wrapping the blanket. As same as in summer season, I wear cotton white clothes to protect from heat. I mainly wear shorts and t-shirt in this season. I take a chapati of wheat, vegetable, pulses, rice, curd or buttermilk in the food. I enjoy to eat mango juice, Srikhand, ice cream. I eat sweet melon and watermelon in the evening. I sleep on the terrace or open ground of the house in this season because of heat. In monsoon, I use raincoat or umbrella to protect from rain. I eat hot and fresh food in this season. I enjoy eating jamuns. I fix mosquito net on the coat when I sleep at night. Okay. Because rainy season में जो mosquitoes है वो ज़्यादा मात्रा में रहते हैं. Next question. Why are the rivers of South India not useful as waterways? Roots of some rivers are South India are in the mountains which have low height. उनकी height कैसी होती है? Low. So there is less water in it except monsoon season. Monsoon season के अलावा दूसरे season में उनका water जो है वो कम होता है. They are dried in summer. These rivers flow from uneven areas of plateaus. Thus, their waters flow speedily in the sea. In the flowing way of rivers, there are high and straight slopes. Therefore, waterfalls are formed at many places. Because of this, the rivers of South India are not used for waterways. मतलब समर में वो ड्राई रहती है और जब रेनफॉल होता है तब उसका अनइवन एरिया में प्लेटूज में से वो क्रॉस होने की वजह से उसका जो पानी है वो डायरेक्ट ओशियन के अंदर बह जाता है स्पीडीली, बराबर. और दूसरा उसका जो स्लोप है वो हाई और स्ट्रेट एरिया में है जिसकी वजह से जो वाटरफॉल्स बनते हैं और जिसकी वजह से वो वाटरवेज में यूज किए होते नहीं हैं. ना वाटर्स आर लेक लोकेटेड इन इंडिया. भारत देश के अंदर जो लेक्स है वो नेचुरल लेक्स ऑफ इंडिया इन उत्तराखंड, नैनी लेक्स ऑफ फ्रेश वाटर इन नैनीताल, वुलर एंड दाल लेक्स ऑफ फ्रेश वाटर इन जम्मू कश्मीर, चिल्का लेक ऑफ सॉल्ट वाटर इन ओडिशा, कोलेरू लेक्स ऑफ फ्रेश वाटर इन आंध्र प्रदेश, पुलिकट लेक ऑफ सॉल्ट वाटर इन तमिलनाडु, सांभर लेक ऑफ सॉल्ट वाटर इन राजस्थान एंड नल सरोवर ऑफ सॉल्ट वाटर इन गुजरात. SMS. What are the different types of mineral? Minerals कौन से हैं? Minerals can be divided into 3 types: metallic mineral, non-metallic mineral and power generating minerals, जिसको हम लोगों ने टेक्स्ट बुक के अंदर नेम है तो मेटालिक मिनरल्स के अंदर रो आयरन, कॉपर, गोल्ड, जिंक, टिंक, निकेल, मर्क्यूरी, प्लेटिनम एक्सेट्रा. नॉन मेटालिक मिनरल में डायमंड, रबी, लैंडस्टोन, चाइना क्ले, डोलोमाइट, बॉक्साइट, फॉस्फोरस, जिप्सम, अकीक, कैल्साइट, सिलिका, ग्रेफाइट, पोटास, फॉस्फेट. एंड पावर जनरेटिंग मिनरल्स कॉल नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम एक्सेट्रा. तो ये सारा जो है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखना है. ये 5 का आंसर है, आंसर नंबर 5.
Okay. Next question, how many types of forests are found in India? There are different types of forests in India. They are evergreen forest, deciduous forest, the tidal or mangrove forest, coniferous forest and the thorny forest. तो ये 5 तरीके के फॉरेस्ट जो है भारत देश में देखने को मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks with appropriate word. Fill in the blanks से dash clothes are preferred by the people of South India to protect themselves from heat. That is a cotton clothes. Dash is made from sundari tree. Sundari tree में से क्या बनेगा? Boat or steamer. River dash of Bihar is flooded every year. That is Koshi river. Dash mineral is used for noise observation. Noise को ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा मिनरल यूज किया जाता है? That is a mica. Dash national bird is situated in Rajasthan. That is a Keoladeo. Now identify who am I. I pass through a middle of India. मैंने आप लोगों को जब आगे मैप समझाया था तभी भी बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर शुड बी पास थ्रू फ्रॉम मिडल ऑफ इंडिया. इट स्नोज रेगुलरली हियर. स्नोज कहाँ पे होते हैं? शिमला एंड दार्जिलिंग. I am the longest river of India. That is Ganga. I am used to make ornament. That is gold. I am well known as the state of white lions. White lion जहाँ पे देखने को मिलती है that is a West Bengal. Now strike out the wrong word from the statement given below. जो स्टेटमेंट दिया है उसमें से जो रॉन्ग वर्ड है उसको निकाल देना है. There is rainfall in India due to the seasonal unseasonal wind. तो इंडिया के अंदर रेनफॉल जो है वो सीजनल विंड से आते हैं, तो अनसीजनल को कैंसिल करो. इट रेन्स हैवीली स्कैरली इन मेघालय. तो मेघालय में जो है हैवीली रेनफॉल होता है, तो स्कैरली को कट करो. द नर्मदा प्रोजेक्ट, द नागार्जुना प्रोजेक्ट इज ऑन रिवर कृष्णा. कृष्णा पे नागार्जुना, जो मैंने आप लोगों को आगे भी याद करवाया था कि कैसे याद रखना है. तो कृष्णा रिवर पे नागार्जुना प्रोजेक्ट है, दैट शुड बी ए नर्मदा को कैंसिल करो. गोल्ड माइन्स आर फाउंड इन कर्नाटका गुजरात स्टेट. That should be found in Karnataka. तो गुजरात को कट करो. टर्पेंटाइन कैचू इज मेड फ्रॉम चीट ट्री. तो चीट ट्री में से टर्पेंटाइन बनता है, तो कैचू को कट करो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द बॉक्स प्रोवाइड अलोंग साइड कॉलम ए और बी दिया है हम लोगों को. द रिवर तुंगभद्रा, दैट शुड बी रिलेटेड द रिवर ऑफ साउथ इंडिया. द रिवर गंगा, द रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया की रिवर है गंगा. आयन, that should be made from mercury. मर्क्यूरी में से, मिनरल में से आयन जो है. द कान्हा नेशनल पार्क शुड बी सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश. सामने सामने ही दिया है. एंड द हेवीएस्ट बर्ड इज द इंडियन बस्टर्ड गरुड़. तो ये दोनों सामने सामने ही है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. मार्क द फॉलोइंग डिटेल्स इन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. हम लोगों को यहाँ पे डिटेल दिया है, हम लोगों को उसको मैप के अंदर फिल्ड करना है. ओके, चलो देखते हैं आगे. चलो, सबसे पहले है राजस्थान. तो गुजरात को पकड़ लो. मैप आप लोगों को मैंने समझाया है. दिस इज अ नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन. ओके, गुजरात के ऊपर है राजस्थान, तो यहाँ पे राजस्थान. ओके. सेकेंड, द रिवर नर्मदा. नर्मदा जो है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, गुजरात में से अरेबियन सी को मिलती है. तो मध्य प्रदेश ये है और ये गुजरात है. तो हियर वी हैव टू बी. ओके, दिस इज अ नर्मदा रिवर. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर चिल्का लेक. Chilka Lake should be situated in West Bengal. हम लोगों ने आगे क्वेश्चन के अंदर देखा चिल्का लेक सॉल्ट शुड बी सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, ओडिशा स्टेट के अंदर. तो हियर शुड बी देयर चिल्का लेक. ओके. नाउ नेक्स्ट इज देयर द बियर सेंचुरी. Bear Sanctuary should be situated in Maharashtra.
beer century. Next, place where mineral oil is available. जहाँ पे मिनरल ऑयल अवेलेबल हो वैसा प्लेस. तो मिनरल ऑयल का हम लोग अगर देखें, चलो पहले प्लेस स्टेट देख लेते हैं. तो मिनरल ऑयल का जो हम लोगों को दिया था, मिनरल ऑयल शुड बी फाउंड इन आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, अंडमान निकोबार. यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 और 5 स्टेट दिए हैं. आप लोग कोई भी स्टेट बता दो. आंध्र प्रदेश भी बता सकते हो, बराबर. आंध्र प्रदेश बता सकते हो, या फिर गुजरात बता सकते हो, या फिर आसाम बता सकते हो, अंडमान निकोबार आइलैंड बता सकते हो. तो आप लोग कोई भी एक. अभी यहाँ पे हम लोगों को सिंबल करना पड़ेगा. मैंने यहाँ पे आंध्र प्रदेश में बताया है मिनरल ऑयल. आप लोगों को यहाँ पे से सिंबल करना है आंध्र प्रदेश. सॉरी, यहाँ पे लिखना है मिनरल ऑयल. ओके. सेंचुरी में हम लोगों ने क्या किया था, डॉटेड किया था. तो यहाँ पे लिख दो सेंचुरी. ये लिखना ज़रूरी है, इसके भी मार्क्स होते हैं. रिवर में हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, ऐसे लाइन जैसी, दैट इज रिवर. अच्छा, यहाँ पे स्टेट है, तो स्टेट के लिए हम लोग कुछ सर्कल ले लो. ओके, स्टेट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारा पास होता है 24 से नीचे 23.5. 23.5 मतलब गुजरात के थोड़े ही ऊपर से. अच्छा, दैट शुड बी अ पासेस फ्रॉम मध्य प्रदेश, बांग्लादेश के नीचे से. ओके, डॉटेड लाइन करनी है ऐसे. तो ये डॉटेड लाइन क्या है अपनी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया मैप. नेक्स्ट मैप है मार्क द डिटेल इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो पहले फिल करते हैं. 2 प्लेसेस रिसीविंग एक्सेसिव रेनफॉल. जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है, तो मेघालय लिख लो, मेघालयाज एंड आसाम. 2 places receive a scanty rainfall. Scanty rainfall that should be in राजस्थान. राजस्थान में कम होता है. एंड लेह एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर. फिर 2 places receive a moderate rainfall. तो मॉडरेट रेनफॉल जरा भारी मात्रा में भी नहीं, कम मात्रा में नहीं, तो गुजरात. ओके, और मध्य प्रदेश ले लो. चलो, ओके. नाउ इसमें हम लोगों को अभी वो प्लेस दिखाने हैं. तो हम लोगों को यहाँ पे जो बॉक्स है वो दिया ही है कि लेस देन 50, 50 to 100, 100 to 200 एंड मोर देन 200. ओके, चलो सबसे पहले एक्सेसिव रेनफॉल में मेघालय और आसाम देख लेते हैं. तो एक्सेसिव रेनफॉल मेघालय एंड आसाम. यहाँ पे आसाम, सॉरी 100 to 200, सॉरी. हाँ, ये अरुणाचल प्रदेश है. आसाम यानी ग्रीन कलर का हम लोगों को दिया ही है. देखो यहाँ पे नीचे मैप में नीचे दिया है 100 to 200 सेंटीमीटर, बराबर. एक्सेसिव रेनफॉल है, तो हम लोगों को पता ही चल जाएगा कि यहाँ पे हम लोगों को ये दिखानी है रीजन्स. ओके, समझ में आ रहा है. ओके, मेघालय स्क्वायर बना दो ऐसे. ओके, नाउ नेक्स्ट स्कैंटी रेनफॉल दैट इज 50 to 100. तो ये लिखो 50 to 100, लेस देन 50, लेस देन 50, दैट इज इन राजस्थान.
रेड डॉट भी कर सकते हो, ये एरिया डैश डैश कर दो। यहाँ पे हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया है तो यहाँ पे डॉटेड कर दो। डॉटेड एरिया, इट इज स्कैंटी रेनफॉल। ओके, अभी नेक्स्ट है गुजरात एंड मध्य प्रदेश, जिसके अंदर मॉडरेट रेनफॉल है। तो यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन ले लेते हैं, मध्य प्रदेश उसके बाजू में ही। तो ये पूरा रीजन ही है कि जहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल, लेकिन यहाँ पे 2 ही दिया है तो हम लोगों ने खाली 2 ही प्लेस लिखे हैं। आप लोग कोई भी प्लेस में ये कर सकते हैं। So here we have to be complete our exercise solution. This is right in your notebook. Thank you.